Hello dear students, hope you all are fine at your home. So dear students, as you all know that we have completed the poem Bird Song. After that poem we have our 7th chapter. Okay, and the name of the chapter is Ahmedabad, India's first World Heritage City. Dear students, Ahmedabad is declared as the World Heritage City by UNESCO. Okay, it is declared by UNESCO. For over 600 years, Ahmedabad is having the World Heritage and has stood for peace, and it is as a landmark because here only Gandhiji started India's independence movement. That's why Ahmedabad is very famous. So dear students, in this chapter what will we come to know? We will come to know that Ahmedabad is the largest state of Gujarat. It is the largest state of Gujarat, and we will also read that Ahmedabad has wealth of architecture. What do you mean by architecture here? The art and science of designing buildings. In Ahmedabad, you will find many mosques, many other buildings which are very wonderful. And next, Ahmedabad is known for Sabarmati Ashram, as I hope you all know that Gandhiji used to live there in Sabarmati Ashram. So it is also famous for that Sabarmati Ashram. And Ahmedabad is known for economical and industrial hub. Here many industries are there. Okay, that's why it is also known for the industrial hub. Now, when was it founded? It was founded on 26th February 1411 by Ahmad Shah. It was founded by Ahmad Shah on 26th Feb 1411. And it was declared as the new capital on 4th March 1411. On this date, it was known as a new capital. So dear students, before starting, one exercise, match the cities with their nicknames. Some names of cities are given and the nicknames are also given. So this is a very short exercise for you. Column A and match it with the column B. Okay. So first is given Jodhpur, Rajasthan. It is known as the blue city. Okay, Jodhpur is known as the blue city. Second is Mumbai. Mumbai is known as city of dreams. Mumbai is known for city of dreams. Third is Kolkata, West Bengal. It is known as the city of joy. It is known as the city of joy. Fourth is Jamshedpur, Jharkhand. It is known as the steel city of India. Which is the steel city of India? Jamshedpur. And the last is given Bengaluru, Karnataka. And dear students, it is known as the IT capital of India. So IT capital of India is Bengaluru, Karnataka. So dear students, now we will start the reading. So dear students, now please open your book at page number 92. We will start the reading. Ahmedabad is the largest city in the state of Gujarat. Gujarat state का largest city है Ahmedabad. A World Heritage City, Ahmedabad wins you over with its wealth of architecture. जो यहाँ पर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और जब आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपके दिल को जीत लेगा. फ्रॉम सेंचुरीज ओल्ड मॉस्क्स, सेंचुरीज ओल्ड यानी कि शताब्दियों पुरानी जो है यहाँ पर मस्जिदें हैं. एंड मोसुलियम, मोसुलियम क्या होता है? बिल्डिंग हाउसिंग अ ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स, जहाँ पर बहुत सारी कब्र होती हैं. टू कटिंग एज कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, और उनका डिज़ाइन जो है वो समकालीन है, यानी कि जिस टाइम की वो आपको कब्र मिलेंगी उसी टाइम का जो है वो डिज़ाइन है, जो उस टाइम डिज़ाइन जो था वो फेमस था. द चीयरफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यू विद द ओल्ड, जो ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन है और जो ओल्ड और न्यू का
को एग्जिस्टेंस यानी कि एग्जिस्ट करता है जो। द सिटी इज अ वर्चुअल kaleidoscope of color, language, festivals and culture। जो सिटी है अहमदाबाद का वो kaleidoscope क्या होता है? A toy consisting a tube containing mirror which shows various colors। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो कलर, लैंग्वेज, फेस्टिवल और कल्चर जो हैं वो कम्प्लीटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। The city is also known for the Sabarmati Ashram, which was Gandhiji's residence during India's freedom movement। सिटी जो है वो फेमस है, जाना जाता है साबरमती आश्रम के लिए, जो गांधी जी का रेजिडेंस एयर मीन्स निवास स्थान, जहाँ पर गांधी जी रहे ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन था उसके दौरान जो था वो गांधी जी यहाँ पर रहे थे। इट वॉज फ्रॉम दिस base that Gandhi ji led the Dandi March salt सत्याग्रह on 12 मार्च 1930। यहीं से जो है साबरमती से जो है गांधी जी ने जो है वो दांडी मार्च यानी कि जो नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन था, जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, तब गांधी जी ने जो है वो साल्ट सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था मार्च 1930 में। Today, Ahmedabad is an important economic and industrial hub in India। इंडस्ट्री का सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं अहमदाबाद को, और इकोनॉमिक पार्ट भी है इंडिया में। It is also one of India's most important seats of learning। लर्निंग का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है। Let's read this lesson to know more about this wonderful city। आगे पढ़ते हैं इस वंडरफुल सिटी के बारे में और जानने के लिए। अहमदाबाद, द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है वो लार्जेस्ट सिटी गुजरात का और फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विरासत लिए हुए है, ठीक है। It is located in western India on the bank of the Sabarmati river। साबरमती रिवर के बैंक पर, किनारे पर वेस्टर्न इंडिया जो है इसकी लोकेशन है। The city from its establishment served as political as well as economical capital of the region। यानी कि जो ये अहमदाबाद सिटी है, जब से ये जो है इस्टेब्लिश हुआ है तब से ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो है वो कैपिटल रहा है उस क्षेत्र की। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं। द अर्लीस्ट सेटलमेंट कैन बी रिकॉर्डेड अराउंड द 12th सेंचुरी अंडर द रूल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य जो वंश था तब से जो है वो सबसे पहली जो है वो सेटलमेंट यानी कि यहाँ पर लोग जो हैं वो सेटल हुए थे, जो 12th सेंचुरी के आसपास जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। द प्रेजेंट सिटी वॉज फाउंडेड ऑन 26 फरवरी 1411 बाय अहमद शाह वन ऑफ गुजरात सल्तनत। जो प्रेजेंट सिटी है अहमदाबाद, उसकी नींव रखी गई थी 26 फरवरी 1411 को अहमद शाह प्रथम के द्वारा, जो गुजरात सल्तनत के थे, एंड डिक्लेयर्ड इट एज अ न्यू कैपिटल ऑन 4 मार्च 1411। और इसको जो है न्यू कैपिटल जो है वो डिक्लेयर कर दिया था 4 मार्च 1411 को। सो डियर स्टूडेंट्स, होप अप टू हियर यू हैव लर्नड। नेक्स्ट इज Ahmedabad is a metropolitan city embodying 600 years of cultural history। अहमदाबाद जो है वो चीफ जो है सिटी है किस इंडिया का, ठीक है। और ये जो है 600 ईयर्स से जो है कल्चरल हिस्ट्री को जो है अपने में समाये हुए है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द ब्यूटी ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। और जो कल्चरल हिस्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है, इसके आर्किटेक्चर में, यानी कि इसकी बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस में। द सिटी प्रोग्रेस्ड अंडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सिटी ने जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंडर जो है प्रोग्रेस की।
एंड व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल देयर, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना कंट्रोल भारत में गुजरात में कर लिया था 1818 से 1857 तक, तब जो है सिटी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। द सिटी फर्दर रिन्यूड इट्स ग्रोथ, सिटी ने जो है अपनी ग्रोथ और जो है आगे बढ़ाई। व्हेन इट गेन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड ओपनिंग ऑफ द रेलवेज अंडर ब्रिटिश रूल, जब यहाँ पर रेलवे की ओपनिंग हुई थी ब्रिटिश रूल के अंडर 1857 से 1947 तक, तब जो है वो सिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो नए काम हुए और सिटी की जो है वो ग्रोथ हुई। Following the arrival of Mahatma Gandhi in 1915, the city became the rallying point of the Indian independence movement. महात्मा गांधी जब अराइवल हुआ, यानी कि महात्मा गांधी जो थे जब पहुँचे 1915 में, तो ये सिटी अहमदाबाद सिटी जो था वो रैलिंग पॉइंट, यानी कि बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी रैलियाँ हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ऐसा प्लेस बन गया ये जहाँ पर लोग जो हैं वो ग्रुपिंग में इकट्ठे होने लग गए थे स्वतंत्रता के लिए, ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। मैनी एक्टिविस्ट्स लाइक सरदार पटेल सर्व द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ द सिटी, सरदार पटेल ने जो है वो शहर की म्यूनिसिपैलिटी में सर्व किया। बिफोर टेकिंग पार्ट इन द मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस की मूवमेंट में पार्ट लेने से पहले जो थे वो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी में सरदार पटेल जो थे वो सर्विस करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस अहमदाबाद वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद अहमदाबाद जो था वो एक बॉम्बे स्टेट का पार्ट बन गया था। When Gujarat was carved out in 1960, the city again became the capital of the state until the establishment of Gandhinagar in 1965. अहमदाबाद सिटी जो है वो became the capital of the state, स्टेट की यानी कि गुजरात की कैपिटल बना जब तक गांधीनगर की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई थी 1965 में। अहमदाबाद इज ऑल्सो द कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ गुजरात एंड द 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है वो कल्चरल और इकोनॉमिकल सेंटर है गुजरात का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल जो हैं वो हमें बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर जो है यहाँ का बहुत अच्छा है, तो वो देखने को मिलता है। एंड द 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और गुजरात जो है वो इंडिया का 7th लार्जेस्ट सिटी है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, up to here we have learnt about Ahmedabad, how it was founded by Ahmad Shah in 1411, and then it gained its growth under the British rule when East India Company controlled there. And then when Gandhiji arrived there, Gandhiji came in 1915 in Gujarat, Ahmedabad. Then the city became the rallying point. The city became the important point for India's independence movement. And Sardar Vallabhbhai Patel also served in the municipality here. And then Gujarat is also known for the cultural and economic center. Okay, and Ahmedabad is the 7th largest city of India. Okay.